There is a shortage of experienced auditors, and new team members require time to fully understand systems, risk, and regulatory environment. The second constraint is the manual nature of many audit activities. Activities such as planning, risk assessment, audit program development, and reporting. All these activities are still heavily documentation driven processes, which actually consume a significant portion of an auditor's time. And third, the constraint relates to the coverage. The technology environments and regulatory requirements continue to expand. However, the audit capacity does not always grow at the same pace. Now, this is where AI becomes very relevant, not just as simple automation and not as templates, but as structured reasoning support. As Mr. Essen already explained, that generative AI and AI agents, they basically allow us to accelerate planning, structured audit programs, and draft reports more efficiently. And more importantly, they allow auditors to reduce audit cycle time and at the same time improving consistency and expanding coverage, all while without increasing the headcount. So the key question now becomes, how do we apply this intelligence in a controlled and governance aligned way? And this is what AuditX is designed to address. सी ऑडिटेक्स जो है वो बेसिकली फंक्शन करता है आपकी टीम मेंबर की तरह. सो आई पुट इट दिस वे that it is not a replacement for auditors, but an intelligent assistant that supports the way auditors already work. और जो पहला डिफरेंशिएटर है वो ये है कि ऑडिटेक्स थिंक्स लाइक एन ऑडिटर. So it doesn't generate generic responses that we see with other chatbots. Instead, it applies structured audit logic, understands organizational contexts, and produces outputs aligned with professional standards. Whether the auditor is doing an audit engagement, drafting audit procedure, or writing finding, the output always follow the audit methodology, not chatbot style responses. The second advantage is capacity multiplication. Now, unlike human, Auditex operates like multiple expert assistants working in parallel, supporting planning and all the remaining audit processes. So this actually allows the audit system to move faster and expand coverage without necessarily increasing the headcount. Welcome to Global Information Security Society for the Professional of Pakistan. Hello, Assalamu alaikum. First of all, welcome to everybody. It has been a long time since we did any session. Partially, it is I always put it on my fault, and also because we were not getting a lot of speakers and a lot of people coming forward for this for such kind of sessions. So, Alhamdulillah, thankfully, Mr. Hassan he approached me and he wanted to do this session with the community because they have come up with a very amazing product for the audit using artificial intelligence. So, and it has been an amazing journey as per him. So, and 1 year ago, he did a session with us about AI and how to use AI. Today, I shared the link of that in the groups already. But we will put that again in the chat. So this one is it's like he will talk about the previous session and he will also talk about their product and what are the things they are using, how they're using the features and all that. So it will be three people from his company. They will be taking over the session, started by Mr. Hamad. Then Mr. Hamad will introduce. Then he will hand on to Mr. Hassan, and then he will hand on to Dr. Murtaza. So, guys,
First of all, thank you for bringing this forward. I always appreciate when somebody is coming forward and providing us something, as a brainstorming, for discussion, for knowledge sharing. It's always very like it's very I can say interesting for us, and it's a good opportunity to learn something new. So, inshallah, let's not waste more time and please start ahead. Ahmad, you can start now. The session is being recorded, so inshallah, if somebody misses it, we will upload it on our YouTube channel also, as we already have the permission from Mr. Hassan. Mr. Ahmad, you can start. Ahmad, you can unmute yourself, I believe. Right then. Thank you, Shazad Sab and the GIS PP team for giving us the opportunity to speak today. So before we start, just a bit about myself. My name is Hamadis Khan, and my professional background spans channel development, product management, commercial operations, and delivering enterprise technology solutions. So early on in my career, as a channel manager, I contributed significantly in laying the foundation of Oracle Distribution Partner Network in Pakistan. Later on, while working with Chinese state-owned enterprise, I was involved in large-scale SAP S4 HANA deployment in about 94 subsidiaries worldwide. So I led and oversaw the implementation of SAP MM and Ariba modules in subsidiaries across Pakistan, Egypt, and Jordan. Currently, I'm working as the product manager for Auditex, where we are exploring how AI can support and transform the internal audit function. So, the topic for today's discussion is IT audit professional transformation using AI. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So I'll start with a simple observation. अगर आपके कुलीग्स और पीयर्स इंटरनल ऑडिट फंक्शन में काम करते हैं तो अक्सर उन आपने देखा होगा उन्हें इमेंस वर्कलोड की कंप्लेन करते हुए because auditors are frequently under pressure to meet deadlines, complete multiple engagements, and ensure proper documentation and reporting. So, because of that, many auditors end up working long hours just to keep up with their audit plans and reporting timelines. Now, this is where AI is starting to change the way auditors work. With the help of AI, auditors can complete many tasks faster with broader coverage and in a more structured manner. तो आज के सेशन में I'll introduce AuditX, an AI-powered audit assistant, and show you all how it can support auditors across the full audit lifecycle. Further, we'll also walk through a live demonstration to see how this works in practice. But before we go deeper into the platform, I would like to invite and hand over to Mr. Hassan Aziz, the founder of Auditex, for a brief introductory session sharing the vision behind Auditex. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much, Hamad, for the intro. And thank you, everyone, for being with us. In Saudi Arabia, it is 21st night, and probably in Pakistan, it is 20th. Thank you so much for being with us. Thank you, Shahzad Saab, for arranging this session. आपको याद होगा कि अराउंड 1 साल पहले हमने बात की थी एआई के टॉपिक के ऊपर, और हमने ओवरऑल जो एडॉप्शन स्ट्रेटजीज थी उनके ऊपर बात की, जिसमें हमने जो एआई की एक्सप्लोजन शुरू हुई थी 22-23 में और ऑनवर्ड्स चल रही थी, उसके ऊपर हमने बात की. देन फिर हमने स्टार्टअप्स के ऊपर बात की कि तकरीबन 100+ यूनिकॉर्न्स थी जो कि ओवर द स्पैन ऑफ 20 years
और अभी एज ऑफ नाउ इस वक्त जो एआई से रिलेटेड जो यूनिकॉर्न्स हैं उनकी तादाद अब 500 के अराउंड पहुंच चुकी हुई है। सो आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है हमारी टेक्नोलॉजिकल लाइफ के अंदर, और इट वुड बी probably bigger than when we had the internet, and afterwards when we had mobile phones and all that stuff. So ये उससे भी probably ये बड़ा जो है वो एक रेवोल्यूशन है जो हमारी टेक्नोलॉजिकल लाइफ में आएगा, एंड नॉट ओनली इन द टेक्नोलॉजिकल लाइफ but it is going to impact our life in all walks of areas touching our professional lives in the offices, touching our daily lives at homes, everywhere. I mean, you talk about education, you talk about medications, healthcare, you talk about your day in the office. uh, Everything has started changing, and the impacts of this revolution has started to come in our lives already. सो अगर इस पे बात करते हुए हम आगे चलें, फिर हमने बात की थी एआई असिस्टेंट्स की और एजेंटिक एआई की। जो ऑडिट एक्ट्स पे अभी हमाद और डॉक्टर मुर्तज़ा जो बात करेंगे वो बेसिकली एजेंट्स के थ्रू ही ऑडिट के फंक्शन को जो है कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी और जो एरियाज़ को टच किया, तो जिसमें हमारे जो एआई यूनिवर्स की बात हमने की, हमने मार्केट साइज की भी बात की थी, फिर हमने एआई हेलुसिनेशंस, एआई फेयरनेस और बॉयस के ऊपर भी बात की थी। हमने कुछ जो उस वक्त के हिसाब से जो कुछ हमने एक लफ्ज़ यूज़ किया था गूफअप्स के हवाले से, तो जो गूफअप्स एआई ने किए थे और जो हेलुसिनेशंस की वजह से जो इश्यूज आए थे उस पर हमने बात की थी। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया। जब जब भी एआई की अडॉप्शन होगी तो जो एआई पॉलिसी और रिस्पॉन्सिबल एआई और एआई गार्ड रेल्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। देन फिर हमने बात की कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एडॉप्शन की जा सकती है, तो हमने डिस्कस किया था गार्टनर का एआई अपॉर्चुनिटी रेडार, जिसमें एक तरफ एवरीडे एआई थी और दूसरी तरफ गेम चेंजिंग एआई थी। और फिर हमने कुछ टेल्को के से रिलेटेड जो यूज़ केसेस थे उनको देखा, और उन एक हमने फिर फ्रेमवर्क पे बात की थी जिसमें हमने बिजनेस वैल्यू और फिजिबिलिटी को लेके वी फिगर्ड आउट दैट हाउ कैन वी प्रायोरिटाइज कीपिंग इन व्यू दीज टू पैरामीटर्स। और फिर मैंने एक लिस्ट आपके सामने रखी थी जिसमें जो एआई के अंदर जो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आ रही थी और जो अभी बहुत ही विजिबल हो चुकी हुई हैं। हमने बात की कंसल्टिंग के ऊपर कि कंसल्टिंग के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। इम्प्लीमेंटेशन एडवाइजरी के अंदर जो इंटरेस्टेड लोग हो सकते हैं वो काम कर सकते हैं। फिर एआई प्रोडक्ट और सॉल्यूशन डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात की, एआई ट्रेनिंग सर्विसेज के ऊपर बात की, और एआई से रिलेटेड रिसोर्स ऑगमेंटेशन और मैनेज सर्विसेज। ये 5 एरियाज थे जो हमने आइडेंटिफाई किए। अच्छा, उस वक्त मैंने जिक्र किया था ऑडिट एक्ट्स का आपसे, तो मेरा थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो तकरीबन 2.5 years आईटी ऑडिट के अंदर, लॉन्ग टाइम बैक, अराउंड 22 years बैक, जब मैंने पीटीसीएल में मैंने ज्वाइन किया तो मैं आईटी ऑडिट में था। तो विद दैट बैकग्राउंड एंड सीजा सर्टिफिकेशन, I thought that audit could be one of the areas where there is a need, because good auditors, professional quality auditors are scarce commodity in the market, और हम always जो है we were struggling to have the auditors। और उसमें फिर जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है थ्रू एआई to get the things done quickly, and there are many mundane tasks
in the audit profession, which, to be honest, auditors do not like to do, like report writing, and these are those laborious tasks which take a lot of time from the auditor's daily life. तो ऑडिटेक्स एम बेसिकली यही कर रहा है कि आपको ये तकरीबन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक अराउंड कोई 30 to 40% ऑफ ऑडिटर्स टाइम ये सेव कर सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम डेवलपमेंट। इस पे हम आज आगे डिटेल में बात करेंगे। तो एआई प्रोडक्ट और सॉल्यूशन डेवलपमेंट में हमने ऑडिटेक्स के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, और उसके बाद कुछ सक्सेस स्टोरी हमारी इस तरह से रही कि वी वर सेलेक्टेड इन मोहम्मद बिन सलमान फाउंडेशन एज अ स्टार्टअप, और उसमें भी ग्रेजुएटेड अल्हम्दुलिल्लाह, और टीम पुट लॉट ऑफ एफर्ट, आई मीन ब्रिंगिंग दैट आइडिया इनटू लाइफ। अभी हमारी जो एमवीपी है वो रेडी है, और वी आर लुकिंग फॉर अर्ली एडॉप्टर्स। मैं थोड़ा सा और इस पे ना एजेंट्स और एजेंटिक एआई के ऊपर बात करके मुख्तसर के ये कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी, देन आई विल हैंड ओवर टू हमाद, देन ही विल टेक यू थ्रू द ऑडिटेक्स। तो बेसिकली ये बात की जा रही है कि अभी फ्यूचर में एजेंट्स हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट किया करेंगे और ह्यूमंस के साथ भी कम्युनिकेट किया करेंगे। देयर वुड बी बिलियंस ऑफ एजेंट्स which would be talking to each other and to humans as well। और यहाँ से अब फ्यूचर में जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो क्रिएट होगी। ये मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ एआई इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर लाइव्स। बहुत सारे लोग खाइफ हैं और कि जी एआई वुड डू दिस, एआई वुड डू दैट। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, और ऑलरेडी उसके इम्पैक्ट्स जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। couple of days back I was talking to one of my ex-colleagues who is running a software house, and they have started using the core AI tools, and a lot of work by these tools instead of being done through the human developers। एक साहब हैं, उनको मैं कोट करूंगा, उनका नाम है इमाद मुश्ताक। ही इज़ अ बांग्लादेशी ब्रिटिश एग्जेक्टिव, जो कि स्टेबिलिटी एआई एक अच्छी बड़ी इनोवेटिव कंपनी है एआई के अंदर, वो उसके सीईओ है, एंड ही इज़ अ थॉट लीडर एज वेल इन द एआई डोमेन। तो वो ये कहते हैं कि जो हमारी जो अभी इकोनॉमिक जो जो रूल है, जो इकोनॉमिक थ्योरी है, वो लेबर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। और लेबर जो है वो वैल्यू हमें बताती है कि किसी प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, और उसकी हम कॉस्टिंग और वो चीज़ें करते हैं। अच्छा, फ्यूचर में उस उनके बकौल ही आर्गूज ऑन दिस दैट agents will be creating value, and they will be replacing the labor, और वो जो लेबर है वो बहुत चीप होगी। अच्छा, इमाद फर्दर इसके ऊपर आर्गू ये करते हैं कि दिस इज गोइंग टू help the mankind a lot in terms of providing cheaper products। जो products इस वक्त हमें से कि 100 डॉलर में मिल रही है, और एआई के थ्रू अगर फ्यूचर में उसकी जो वैल्यू है 1-2 डॉलर्स तक आ जाती है, एंड इट मेक्स सेंस एज वेल। आई एग्री विद हिम in a way that what Imad says that in the previous revolutions, जहाँ से इंडस्ट्री रेवोल्यूशन शुरू हुई, उस वक्त भी बहुत सारे स्केप्टिसिज्म का इजहार किया जाता था कि जी ये लोगों की जॉब्स ले जाएंगी, और ये, और हुआ भी। लेकिन वो जॉब्स रिप्लेस हुई, और उसकी वजह से जो मैस प्रोडक्शन हुई, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत लोगों तक पहुंची, जो कि उससे पहले जो
ह्यूमन लेबर के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती थी वो कुछ लोगों तक पहुंचती थी, वो अफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद जब मैस लेवल पे प्रोडक्शन शुरू हुई तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो कम हुई और वो बहुत सारे लोगों तक पहुंची। तो इसी तरह से इमाद आर्गूज दैट इन फ्यूचर विद एआई बहुत सारी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो चीप होंगी एंड इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट द मैनकाइंड इन लार्ज, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी यूज़ इट। और इसमें जो एजेंट्स के हवाले से जो फर्दर दो तीन और मैं बातें करूंगा। एक तो ये कि पहले जो जब हम पिछले साल हमने बात की थी तो इट वाज मोर ऑफ अ ह्यूमन इन द लूप काइंड ऑफ ऑडिट असिस्टेंट्स which were working. Now, at the moment, it is shifting from human in the loop to human on the loop for oversight, and more autonomy is being given to the AI. So that would gradually increase. हमारा जो ऑडिट एक्स है इसकी मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें बहुत सारी टास्क जो हैं वो आपको एआई के थ्रू आपको एजेंट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि ऑडिट प्रोफेशन एक सेंसिटिव प्रोफेशन है तो उसमें ह्यूमन इन द लूप का फैक्टर भी हमने रखा है, और एट एट प्लेसेस ह्यूमन ऑन द लूप फॉर ओवरसाइट का फैक्टर भी रखा है। कुछ जगहों पे ऑटोनॉमी भी हमने दी है। एंड डेफिनेटली व्हेन दिस प्रोडक्ट वुड ग्रो एंड पीपल वुड स्टार्ट यूजिंग इट तो ह्यूमन ऑन द लूप फॉर ओवरसाइट फैक्टर जो है वो उसका ज़्यादा पता चला जाएगा। चूंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो जो ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक एग्जांपल दूंगा। बहुत सारी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो एआई को यूज़ कर रही हैं। क्राउड स्ट्राइक का एजेंटिक सॉर जो है वो बेसिकली ऑर्केस्ट्रेट करता है एआई एजेंट्स को, और वो कोऑर्डिनेट करता है रियल टाइम एजेंट टू एजेंट एंड एनालिस्ट टू एजेंट कम्युनिकेशन को। तो फ्यूचर में, और अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कुछ जगहों पे जो एनालिस्ट हैं, जो जिनको हम सॉक एनालिस्ट और वो कहते थे, वो अब एजेंट्स सॉक्स के थ्रू रिप्लेस हो रहे हैं। तो ऐसा ऐसा ये चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ्स में आती जाएंगी। All we need to do is to be ready for it, to adopt ourselves. Or I think I've taken a lot of time of Hamad as well. I think over to you, Hamad. You can carry on from here, and we'll take question answers afterwards. Right. Thank you so much, Mr. SM. So before I begin, let me also invite Dr. Murtaza Ashraf, who's the technical head at Auditex, for a brief overview. Over to you, Murtaza. Assalamu alaikum. Thank you, Hamad, for the introduction. Hello, everyone. This is Murtaza, and I am leading AI team at IU Prime, and we are proud technical partners behind this product you are seeing today. So it's been a year, I guess. We met with Sir SN, and it's been a very collaborative journey. We have worked very closely with him, and we did a lot of brainstorming, and we did a lot of requirement gathering. And once we did that part, so we thought we should build this product from scratch, because specifically for the auditing part, legal part, compliance part, data is quite critical. So we cannot rely on third-party apps. So we should be relying on the open source tech stack and the on-prem ready tech stack. So there are two ways to approach this thing. एक ये है कि आप जैसे थर्ड पार्टी एप्स होती हैं जिसमें हमारे पास ओपन एआई की एपीआईज हैं, जो लोग डेवलपमेंट को तो अंडरस्टैंड करते होंगे, ओपन एआई की एपीआईज अवेलेबल हैं जिनको यूटिलाइज करके हम लोग एक ऐप डेवलप कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच ये होती है हमारे पास कि हम लोग ओपन सोर्स मॉडल्स
जो कि कुछ ओपन एआई की हैं, कुछ मेटा फेसबुक की तरफ से आते हैं, कुछ डीप सीक के अवेलेबल हैं, क्वेन के अवेलेबल हैं। तो जब हम लोगों ने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, और उसकी बेस पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि वी शुड गो विद द ओपन सोर्स टेक स्टैक, कि हम लोग मेटा का कोई ओपन सोर्स मॉडल एलएलएम या फिर ओपन एआई का ओपन सोर्स मॉडल जीपीटी ओएसएस उसको यूटिलाइज करें, और उसको हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑन प्रेम डिप्लॉय कर सके। लेट्स सपोज कोई एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये पीटीसीएल है, नेयाटेल है, वहां पे हम लोग इसको डिप्लॉय कर सकें, और उसका लिंक विद द क्लाउड वो जीरो हो। उसमें ये है कि जो डाटा है वो पार्क होस्ट पे होगा, और कोई भी स्पेसिफिकली डाटा रिलेटेड ब्रीच कोई भी नहीं होगा। उस इस केस में फिर हम लोगों ने मेक श्योर किया कि हम लोग ओपन सोर्स टेक स्टैक को यूज करें, इस सारी की सारी प्रोडक्ट को स्क्रैच से डेवलप करें। और जब हमें स्क्रैच से डेवलप करना था, हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज थी, लेकिन हमें डोमेन एक्सपर्ट का नॉलेज चाहिए था। तो सर एसर ने काफी अच्छे तरीके से हम लोगों को गाइड किया कि हम लोग किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं, और एक एआई बेस्ड सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो कि ऑडिटिंग को असिस्ट कर सके। और अभी भी हम लोग ओवर द टाइम इसको इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यू नो देर 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 ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। So that's why I guess we are now sitting with you guys. So it's a very good attendance over here. So if you guys have any feedback, comments, you can please let us know, because we will be always looking forward for the domain experts comments on this product. Next slide, please. So now a brief overview of IOPtime. At IOPtime, we are providing IT-based services in 3 different verticals. We are providing Salesforce, AI, and IoT solutions. We have certified experts in Salesforce, AI, and IoT. We have cross-border presence. हमारी जो डेवलपर्स की टीम है वो पाकिस्तान बेस्ड है. वी आर रजिस्टर्ड इन यूके एंड वी हैव अ ऑफिस ओवर देयर एज वेल. Now we are exploring options in GCC, because for the GCC countries, specifically KSA, Dubai, a lot of investment is coming in the domain of AI and the CRM Salesforce. So we are trying to explore those options, and they have good laid down vision for 2030. So that's why we are thinking that we should explore the options in GCC as well, other than Pakistan, UK, and the North America. Last year, we have been shortlisted as top 50 AI companies by Forbes. We have also featured in Salesforce Dreamforce. We have been nominated by Konga Awards. So ये कुछ स्पेसिफिक एक हम लोगों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम लोग फीचर हो चुके हैं, बेस्ड ऑन आवर एक्सपर्टीज, बेस्ड ऑन आवर ग्लोबल आउटरीच. Notable wins में so once within the 1 year of becoming the Salesforce partners, we actually landed 4 major fintech clients from Canada. For the AI part, we have secured Zimbabwe national project with the Ministry of ICT in Zimbabwe, and we are digitizing their national health system. Not only for the urban areas, but we are also making sure that health and medical facilities are also available to the unprivileged people who are based in rural areas. So we are developing their community health worker apps, we are developing their users app, and also the complete EHR for their clinics and the hospitals. And अभी भी ये project in process है. Most probably within a year or two, we will be able to launch a complete full-fledged app for the people of Zimbabwe, and it's a government-based project. Other than the industry, we have collaboration with the academia and research groups. We have signed MOUs
and have collaboration with University of Queensland in Australia, University of Malaya, and Lober University. For these specific research groups, we are actually working with the transport safety research groups. We are providing them VN-based models, which are based on AI. And what we are doing is we are extracting the uh, CCTV camera feeds, CCTV cameras which are installed on overhead bridges, different signals, and we are extracting the vehicles data. And we are actually extracting their data and sending their data to those research groups. And those research groups actually doing some sort of analysis which is related to their research, and they are doing their analysis, and they are doing the research and publishing that research in notable journals in transport safety. For the AI, we have signed MOU with a US-based manufacturer who is based in Arizona, United States, and we are working with him since like 2017. We deliver more than 20 projects in the field of IoT. So there are three verticals. We have expertise in all these three verticals. I am leading the AI part, एंड वी आर ट्राइंग के हम लोगों का ये जितना भी एक्सपीरियंस है मोर देन 10 years, हम लोग जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं वो इस ऑडिट एक्स के अंदर ये वाला जो एक्सपीरियंस है किसी ना किसी वे के अंदर इंजेक्ट करें. लेकिन ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड. सर एहसन हैज हिज ओन डोमेन एक्सपर्टीज, सो वी ऑलवेज रिलाई कि वो किस तरीके से गाइड करते हैं और हम इसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकें, किस तरीके से इस प्रोडक्ट को फर्निश कर सकें. और आज आप लोगों के साथ एक मीटिंग हो रही है जिसमें ऑब्वियसली आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, फीडबैक आएगा, जिस फीडबैक को ऑब्वियसली हम लोग किसी ना किसी वे के अंदर इस प्रोडक्ट के अंदर यूज करेंगे और ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट को और फर्निश कर सकेंगे. सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर हमाद, सर एहसन. सो हमाद, ओवर टू यू, यू कैन टेक. Right then. uh, thank you, Dr. Murtaza. So let's continue with our presentation. So before we look more closely at AuditX, let us first take a moment to understand the current audit landscape. So if we observe many audit functions today, three key constraints become visible. The first one is obviously capacity. There is a shortage of experienced auditors, and new team members require time to fully understand systems, risks, and regulatory environment. The second constraint is the manual nature of many audit activities. Activities such as planning, risk assessment, audit program development, and reporting. All these activities are still heavily documentation driven processes, which actually consume a significant portion of an auditor's time. And third, the constraint relates to the coverage. The technology environments and regulatory requirements continue to expand. However, the audit capacity does not always grow at the same pace. Now, this is where AI becomes very relevant, not just as simple automation and not as templates, but as structured reasoning support. As Mr. Essen already explained, that generative AI and AI agents, they basically allow us to accelerate planning, structured audit programs, and draft reports more efficiently. And more importantly, they allow auditors to reduce audit cycle time and at the same time improving consistency and expanding coverage, all while without increasing the headcount. So the key question now becomes, how do we apply this intelligence in a controlled and governance aligned way? And this is what AuditX is designed to address.
सी ऑडिडेक्स जो है वो बेसिकली फंक्शन करता है आपकी टीम मेंबर की तरह. सो आई पुट इट दिस वे दैट इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ऑडिटर्स बट एन इंटेलिजेंट असिस्टेंट दैट सपोर्ट्स द वे ऑडिटर्स ऑलरेडी वर्क. और जो पहला डिफरेंशिएटर है वो ये है कि ऑडिटेक्स थिंक्स लाइक एन ऑडिटर. So it doesn't generate generic responses that we see with other chatbots. Instead, it applies structured audit logic, understands organizational contexts, and produces outputs aligned with professional standards. Whether the auditor is doing an audit engagement, drafting audit procedure, or writing finding, the output always follow the audit methodology, not chatbot style responses. The second advantage is capacity multiplication. Now, unlike human, Audidex operates like multiple expert assistants working in parallel, supporting planning and all the remaining audit processes. So this actually allows the audit system to move faster and expand coverage without necessarily increasing the headcount. And the third benefit is consistency and quality. So the output generated, they follow structured reasoning and establish best practices. And that actually reduces rework, strengthens the documentation, and improves the credibility with management and regulators. And finally, Audidex preserves institutional knowledge. It captures audit logic, historical context, and structured reasoning over time. तो ऑडिट टीम में अगर कोई मेंबर चेंज होता है, नॉलेज उनके साथ नहीं जाता. सो दिस एक्चुअली प्रोटेक्ट्स कंटिन्यूटी एंड सिग्निफिकेंटली shortens the onboarding time for new auditors. So, in simple term, if I may summarize, AuditX becomes a reliable, always available support layer across the audit life cycle. तो चलिए अब जायज़ा लेते हैं कि ये पूरे ऑडिट लाइफ साइकिल में ऑडिट एक्स कैसे वर्क कर रहा होता. So, before I go deeper into the audit stages, एक थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन कर लेते हैं एलएलएम और रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, रैग एज यू कॉल इट, इस पर कर लेते हैं. तो बेसिकली जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो ये है कि ऑडिटेक्स अपना रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करता है. तो सिंपल कोशिश करूंगा सिंपल वर्ड में ये एक्सप्लेन करूं. सो बेसिकली हमारे पास ये दो कंपोनेंट है, एलएलएम है और रैग है. एलएलएम बेसिकली इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है which enables structured reasoning, drafting, and natural interaction. RAG, on the other hand, actually provides the context and control. So RAG actually ensures that the every response generated by the system is grounded in your organization own data and documentation. तो इसको अगर मैं और सिंपल करूं तो एलएलएम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है और रैग जो है वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है. नाउ दिस इज वेयर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या करते हैं कि ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन एक हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसका जिसका नाम है आईटी यूनिवर्स. ये डॉक्यूमेंट मैं आपको डेमो में भी दिखाऊंगा. तो इस डॉक्यूमेंट में हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी की इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेते हैं. एंड दैट इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स द कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस यूनिट्स, टेक्नोलॉजी लैंडस्केप, कोर सिस्टम एंड द एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. इस डॉक्यूमेंट को हम रैग में अपलोड कर देते हैं along with the policies and historical data. और उसके बाद जब भी ऑडिटेक्स कोई प्लान जनरेट करता है, प्रोग्राम बनाता है या रिपोर्ट ड्राफ्ट करता है, तो वो जो रैग में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उनको रेफरेंस करता है और एक कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है. तो ये तो एक थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन हो गई. एक ज़रा हम दोबारा ऑडिट प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं. आई थिंक दिस सेशन इज़ ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टू यू नो मे बी डिस्कस अबाउट द होल ऑडिट प्रोसेस एज वेल. तो अगर हम बात करते हैं ऑडिट प्रोसेस की तो टिपिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है एनुअल ऑडिट प्लानिंग से.
उसमें हम ऑडिट इंगेजमेंट्स फाइनल कर लेते हैं, एक रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल उन ऑडिट इंगेजमेंट्स की हम प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, और एग्जीक्यूशन के बाद रिपोर्टिंग और क्लोजर की तरफ चले जाते हैं। तो ऑडिट एक्स इसमें कैसे हेल्प कर रहा है ऑडिटर्स को? ऑडिटर्स ऑलरेडी ओवरबर्डनड है, और प्रोडक्ट का आइडिया यही था कि किसी तरीके से वी शुड मेक, एक्चुअली इफ आई पुट इट इन दिस वे, कि हम उनकी लाइफ थोड़ी सी आसान बना दें। तो हर स्टेज पे जो है ऑडिट एक्स उनको असिस्ट कर रहा होता है। अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं, तो ऑडिटेक्स इनको स्ट्रक्चर्ड रिस्क असेसमेंट और बैलेंस ऑडिट प्लान्स जो कि अलाइन है विद देयर आईटी एंड रेगुलेटरी लैंडस्केप, वो जनरेट करके देता है। फिर जब हम बात करते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट की, तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स उनको जनरेट करके दे देता है। एग्जीक्यूशन में इट हेल्प्स ऑडिटर ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन एंड ऑर्गेनाइज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। और रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो it generates structured draft reports and also help incorporate auditing feedback efficiently. Or throughout this process, auditors remain fully in control. Auditex simply assist with structure, reasoning and drafting. सो इस सारे प्रोसेस से होता क्या है कि वो जो शुरू में हम कंस्ट्रेंट्स की हमने बात की थी, तो विद ऑडिट एक्स वी एक्चुअली गेट ब्रॉडर ऑडिट कवरेज, faster cycle times, and a stronger continuity, all while without increasing the headcounts. So it's about time that we move into the system and see how this works in a real audit environment. But before we actually go into the live system, I think it is very important, right? So I think Mr. Rashid has some question. Right then. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अगर आप पिछली स्लाइड पे वापस जाएं जी तो जी यहाँ आपने कहा कि ये जो आपका मॉडल है ये इन सारी स्टेजेस में जो है वो हेल्प करता है। जी तो जी। इसमें मे बी आप इसको बाद में कवर करें, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है जो कि आपका रिस्क बेस्ड अप्रोच के हिसाब से ऑडिट प्लान और प्रोडक्ट के हिसाब से या उसकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ऑडिट प्लान बनाता है। तो इस मॉडल में ये किस तरीके से वो रिस्क मैनेजमेंट की जो एपेटाइट है वो कैसे इसमें एम्बेड होती है? Right. Basically, I'll show that into the demo as well. The first thing that we are gonna touch upon would be the annual audit planning. तो वहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसमें हम रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं। एक बड़ी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमने इसमें ली है, बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। उनका एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जी टैग के नाम से, तो उसको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट किया। तो लेटर ऑन द डेमो उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसमें रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी हमाद भाई आप कंटिन्यू करें, क्वेश्चन आंसर हम जी जी। एंड पे भी देख लेंगे, क्योंकि राइट माशाल्लाह इट्स राइट ऑलरेडी लाइक 55 मिनट्स और अभी हमें माशाल्लाह अभी मेरे में भी नहीं पहुंचे शायद। राइट राइट। नहीं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि डेमो को ज़रा जल्दी रैप अप कर लें। हाँ चलिए। तो उस डेमो का मैं बेसिक बता देता हूँ क्विकली, कि हमने एक फिक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सोरा टेलीकम्युनिकेशन के नाम से डेमो के लिए सेटअप की है, जो कि एक रियलिस्टिक इंटरप्राइज टेलीकॉम इन्वायरमेंट इन सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इसमें 3 रोल हमने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं: चीफ ऑडिट ऑफिसर का, मैनेजर ऑडिट का और ऑडिटर का। अब इसमें रोल बेस्ड एक्सेस मैनेजमेंट का फीचर मौजूद है हमारी एप्लीकेशन में। तो तो अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूं, तो जो एनुअल ऑडिट प्लानिंग है, दैट एक्चुअली रेस्ट विद द चीफ ऑडिट ऑफिसर और द पर्सन ही वांट्स टू designate to or delegate the responsibility. The manager supervises engagement and program development, and the auditor focus on the execution and documentation. इसके अलावा लेफ्ट पे आप ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्ट्स देख रहे होंगे, जिसकी मैंने लास्ट स्लाइड में बात की थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्ट्स है, इसको हमने काफ़ी ब्रॉड रखा हुआ है।
काफ़ी सारे सिस्टम इधर हमने मेंशन किए हुए हैं। और सिमिलरली रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस की बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है, जैसे कि सामा है, पीडीपीएल है, एनसी है। तो इन सब, जब भी ऑडिट एक्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर कर रखते हुए कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम एक ब्रीफली बात कर लें ऑडिट एक्ट के मॉड्यूल्स की, तो ये बेसिकली जो ऑडिट वर्कफ्लो है उसी को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। हमारा पहला मॉड्यूल है एनुअल ऑडिट प्लानिंग का, देन वी हैव प्रोग्राम डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन, ऑडिट फीडबैक एंड फाइनल रिपोर्ट। So we are all set and ready. Let me just switch screens and show you the live system. Right then. So you can see the screen. जी हाँ, चले कंटिन्यू करें, so we Right. can see the screen. Right then. Right then. So to start off the demo, I'm logging in with the credentials of the Chief Audit Officer. Khalid here is the Chief Audit Officer. तो बिफोर आई जंप इनटू द स्पेसिफिक मॉड्यूल्स, एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। जब हम लॉगिन करते हैं हमारे पास सामने डैशबोर्ड आ जाता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे इंसाइट्स और स्टैट्स आ रहे होते हैं ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड। इसमें हमारे पास केपीआई कार्ड्स है और डिफरेंट चार्ट्स इन ग्राफ है। प्लस इफ यू लुक एट द लेफ्ट साइड देयर वी डू हैव अ इंट्यूटिव डिज़ाइन फॉर ऑडिट एक्स, एंड दिस शोज द this on the left we do have the navigation bar that actually leads you to the different audit X modules. So Khalid चूंकि चीफ ऑडिट ऑफिसर हैं, थोड़े से वरिड हैं, इनको एनुअल ऑडिट प्लानिंग कंप्लीट भी करनी है, प्लस वेकेशन भी प्लान की हुई हैं। तो आइए देखते हैं ऑडिट एक्स कैसे स्विफ्टली इनके लिए एक ऑडिट एनुअल प्लान जनरेट करके देता है। सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन एनुअल ऑडिट प्लान। And just to start the process, I'll be updating the IT यूनिवर्स। पहले मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था IT यूनिवर्स का, तो ये एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट होती है जो कि एडमिन अपलोड कर देता है, और सारा इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स मौजूद है। अगर कोई और फर्दर चेंजेस चीफ ऑडिट ऑफिसर को करने हैं, जैसे कि कोई नया सिस्टम आ गया है या कोई नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, ही कैन डू दैट यूजिंग दिस इंटरफेस। और जो भी वो चेंजेस करेंगे वो सिस्टम में या रैग में उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और रिस्पांस जो भी जनरेट होगा सिस्टम का वो उसके अकॉर्डिंगली हो रहा होगा। टू बिगिन द प्रोसेस आई जस्ट सिंपली प्रेस दिस एरो, and as you can see with a click of a button, and this is the actually the power of AI, कि with a click of a button ऑडिट एक्ट सिस्टम ने ऑडिट एरियाज जो है वो आइडेंटिफाई करके दे दिए। और ना सिर्फ ऑडिट एरियाज आइडेंटिफाई करके दिए हैं, बल्कि उनको एक कंप्लीट स्कोप भी डिफाइन कर दिया है। जैसे अगर हम नेटवर्क सेगमेंटेशन एंड फायरवॉल की बात करें, तो हमारे पास उसका एक पूरा स्कोप भी आ रहा है, विच इज़ इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स विच वी लोडेड वाया द IT यूनिवर्स। उसके अलावा क्विकली अगर मैं IT एनुअल ऑडिट प्लान की बात करूं, तो टिपिकली दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी आई एम श्योर ऐसा ही होता है कि वी स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग द ऑडिट एरियाज, देन वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द रिस्क असेसमेंट, एंड देन वी जनरेट द एक्चुअल प्लान एज वेल। अच्छा जी, अब ऑडिट एरियाज हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप है इनको रिफाइन और फाइन ट्यून करने का। इसके लिए भी ऑडिटेक्स ने एक फीचर अवेलेबल है। वो ये है कि हम यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज इंटरेक्शन इसमें मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि चीफ ऑडिट ऑफिसर ने ये प्लान ओपन किया हुआ है एक मीटिंग के अंदर, उनके साथ उनके कुलीग्स बैठे हुए हैं और वो मिल के डिलिबरेट कर रहे हैं
कि जी अब ये प्लान तो हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ आ गया है, अब इसको फाइनलाइज करते हैं। तो इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे हम यूजिंग ए नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट्स मैंने डेमो को कंटेन करने के लिए ऑलरेडी अपने पास सेव करके रख लिए थे, सो दैट वी डोंट टेक मच टाइम। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट रन कर दिया कि जी एक ये जो हमारे पास एरिया है इसका नाम चेंज कर दिया जाए। हमाद, इफ यू अलाउ अच्छा। मी, इसको जी। आप इस तरह लीजिए कि देखें, जो भी ऑडिट की प्लानिंग है उसके लिए जो ऑडिट यूनिवर्स है ना, दैट इज द मेन, यू नो, रियल मीट इज देयर इन द यूनिवर्स, ऑडिट यूनिवर्स के अंदर। अच्छा, अब जो हमारे ऑडिटर्स हैं प्रोफेशनल, दे नो द यूनिवर्स, द लैंडस्केप इन विच दे आर वर्किंग। उनको ऑर्गेनाइजेशन का पता भी होता है, दे नो बाय हार्ट, और इट इज इन देयर माइंड, और दे माइट बी हैविंग सर्टेन, यू नो, आईटी स्ट्रेटेजी, और जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स और जो आईटी रोड मैप उनके पास किसी न किसी फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स में होते हैं। अच्छा, अब जब हम ये कह रहे हैं कि ये ऑडिट एक्स जो है इट विल बिकम पार्ट ऑफ द टीम, तो हमें उसको इक्विप भी करना है। तो सबसे पहली जो जो इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए होगी वो ऑडिट यूनिवर्स की फॉर्म में होगी। जैसा कि ये हमारी एमवीपी अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ आईटी ऑडिट को कवर कर रही है, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव प्लान्स टू टू एक्चुअली कवर जनरल ऑडिट, फाइनेंशियल, सप्लाई चेन, ऑपरेशनल ऑडिट्स, वो फ्यूचर में हम करेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस आईटी के ऊपर है, आईटी ऑडिट। तो इसीलिए हम आज जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आईटी यूनिवर्स है। तो ये इंफॉर्मेशन से बेसिकली जो है वो ऑडिट एक्स आपको ऑडिट एरियाज आइडेंटिफाई करके, और फिर रिस्क असेसमेंट के टाइम पे आप, अगर आप इसको देखें तो उस हवाले से उसको मज़ीद जब देखते हैं तो ये जो ऑडिट एरियाज हैं उन, जब भी आप रिस्क असेसमेंट करने जाएंगे, यू विल प्रॉब मोर इनटू दैट एरिया, यू विल गैदर मोर इंफॉर्मेशन। हो सकता है आप उस एप्लीकेशन से रिलेटेड सर्विस डेस्क के ऊपर जो टिकट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, एंड यू मे नो कि इसके जो एंड यूजर्स हैं उनकी क्या फीडबैक है, उसकी बेसिस के ऊपर फिर आप रिस्क असेसमेंट्स कर रहे होते हैं जो ऑडिटर के पास इंफॉर्मेशन होती है। ओवर टू यू हमाद, मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। जी, थैंक यू सो मच। तो आफ्टर फाइन ट्यूनिंग द ऑडिट एरियाज, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है रिस्क असेसमेंट का। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, रिस्क असेसमेंट करने से पहले हमारे पास ये इंटरफेस अवेलेबल होता है जिसमें हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिटर्स और मैनेजर्स और चीफ के पास होती है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते, लेट सपोज हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि नेटवर्क सेगमेंटेशन में उसके ऑडिट के लिए हमारे पास कंप्लाइंस रिलेटेड रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। अगर हम वो मेंशन कर दें तो जो सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी रिस्क स्कोरिंग कर रहा होता है। तो ये एक इंटरफेस दिया हुआ है जिसके थ्रू हम ये एडिशनल कॉन्टेक्स्ट जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। लेट मी जस्ट शो यू द रिस्क असेसमेंट being done by the system. राइट देन, तो ये एक रिस्क असेसमेंट है जो कि सिस्टम ने जनरेट करके दी है विद विद द इंटायर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्ट्स। और ये एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट है, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, विच कम्स फ्रॉम द गाइडलाइंस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स एंड मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम द जी टैग डॉक्यूमेंट। तो इसमें इम्पैक्ट और लाइकलीहुड के अगेंस्ट स्कोरिंग हुई हुई है फॉर ऑल दी ऑडिट एरियाज। और फिर हमारे पास मल्टीपल रिस्क डायमेंशन है जिसमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, क्वालिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स है, चेंजिंग इन ऑडिट यूनिट है। और हमारे पास न सिर्फ ये कि सिस्टम ये इस टेम्पलेट को जनरेट कर रहा है बल्कि इसकी स्कोरिंग भी कर रहा है।
और उसके बाद उसके अलावा हमें एक रिकमेंडेड साइकिल भी जनरेट करके दे रहा है। मतलब वो हमें रिकमेंड कर रहा है कि ये जो ऑडिट है ये 1 साल बाद होना चाहिए, दोबारा 2 साल बाद होना चाहिए, 3 साल बाद। तो ये रिकमेंडेशन भी सिस्टम की तरफ से आ रही है। हाउएवर द फाइनल डिसीजन ऑलवेज रेस्ट विद द ह्यूमन हु इज ऑपरेटिंग इट। इसके अलावा जैसे कि वो प्रीवियस स्क्रीन पे मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला इंटरफेस आपको दिखाया था। अगर हम कोई इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ऑब्वियसली। एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है ऑडिटर का, और जो ऑडिट फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उनकी बेस पे वो ओवरराइड कर सकते हैं सिस्टम की रिकमेंडेशन। प्लस इसके अलावा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पीछे जाकर उसका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जैसे वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे उस हिसाब से सिस्टम जो है इसमें स्कोरिंग को चेंज कर देगा। तो आफ्टर रिस्क असेसमेंट द सिस्टम इंस्टेंटली जनरेट्स सी प्लान, और प्लान में रिस्क लेवल के साथ साथ एनुअल साइकिल, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वो जनरेट कर देता है। तो आपने देखा कि हमने आईटी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया, और हमने एक एनुअल ऑडिट प्लान जो है वो विद इन मिनट्स जनरेट कर लिया यूजिंग ऑडिट एक्स। अगर यही प्रोसीजर मैनुअली रन किया जाता तो पहले तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती, फिर चीज़ों को अलाइन किया जाता, मीटिंग्स होस्ट की जाती, और आई थिंक आई एम श्योर कि ये पूरा प्रोसेस जो है आई थिंक कुछ दिनों में ही कंप्लीट हो पाता, इफ़ नॉट मंथ्स। सो विद ऑडिट एक्स वी कैन डू इट मच मच फास्टर। तो ऑडिट एरियाज की आइडेंटिफिकेशन के बाद बेसिकली अब चीफ ऑडिट ऑफिसर जो है वो ऑडिट इंगेजमेंट्स को जो है डेजिग्नेट कर देते हैं। हमारे पास ये सारे एरियाज जहाँ पे आ रहे होते हैं, तो वो पर्टिकुलर इंगेजमेंट को किसी मैनेजर को डेजिग्नेट कर देंगे, मैनेजर इन टर्न उसको ऑडिटर को डेजिग्नेट कर देगा। तो फॉर दिस डेमो हमने ऑलरेडी कुछ एंगेजमेंट्स जो हैं ऑडिटर्स को स्पेसिफाई की हुई है। तो डायरेक्टली वहाँ चलते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऑडिट प्रोग्राम डेवलपमेंट का। तो अब मैं बिलाल अहमद, जो कि हमारे ऑडिटर इधर कॉन्फ़िगर्ड हैं, उनके अकाउंट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अच्छा जी, जैसे कि मैंने शुरू में भी बात की थी, ऑडिटर्स के पास बहुत हैवी वर्कलोड होता है। जहाँ पे भी आप देखेंगे तो उनके पास 4 ऑडिट एंगेजमेंट्स हैं और एक स्पेसिफिक डेडलाइंस में उनको परफॉर्म कर रही हैं। तो आइए देखते हैं ऑडिट एक्स कैसे बिलाल अहमद की हेल्प कर रहा है, और विद इन डेडलाइंस, नॉट इनफैक्ट के डेडलाइन बल्कि काफ़ी पहले उनके लिए पॉसिबल कर रहा है कि वो अपनी ऑडिट इंगेजमेंट्स को कंप्लीट कर सके। तो ये एक प्रोसेस है ओरेकल बिलिंग एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट का, ये इनको असाइन हुआ है। तो उसका मैं प्रोग्राम जनरेट करके दिखाता हूँ आपको। सो आई सिंपली क्लिक ऑन दी अपडेट प्रोग्राम बटन, और जैसे ही मैंने क्लिक किया सिस्टम ने ऑटोमेटिकली एक पूरा ऑडिट प्रोग्राम जनरेट करके दे दिया। अच्छा, जब हम ऑडिट प्रोग्राम की बात कर रहे होते हैं तो ऑडिट प्रोग्राम में मल्टीपल चीज़ें आती हैं। उसमें हमारे पास अंडर स्पेसिफिक ऑडिट एरिया हमारे पास मल्टीपल एरियाज होते हैं, और अंडर दैट पर्टिकुलर सब एरिया वी हैव सब प्रोसेसेस, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड टेस्टिंग स्टेप। तो ये सब विद अ क्लिक ऑफ अ बटन ऑडिट एक्स ने हमारे बिलाल साहब के लिए करके दे दिया है। अब बिलाल साहब ने ऑब्वियसली इसको रिव्यू करना है और उसमें मॉडिफिकेशन करनी है। तो ऑडिट एक्स ने वो भी इनके लिए बहुत आसान बना दिया है। लेट सपोज ये एक हमारे पास सब एरिया है एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट का। आई एम श्योर एवरीबडी इज़ वेल अवेयर ऑफ दैट। तो इसमें हमारे पास यूज़र प्रोविजनिंग, डी प्रोविजनिंग है, और एक्सेस राइट रिव्यू है। अब बिलाल साहब चाहते हैं कि इधर प्रिविलेज अकाउंट मैनेजमेंट भी जो है, एक्सेस मैनेजमेंट भी जो है, वो भी ऐड कर दी जाए। तो हम ये एक एरिया यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और लेट मी डेमोन्स्ट्रेट हाउ इजी टू परफॉर्म मॉडिफिकेशंस ओवर हेयर। तो मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली क्रिएट के बटन पे क्लिक किया। अब ऑब्वियसली सिस्टम टेक्स टाइम, वो अपने रैक की इंफॉर्मेशन को चेक करता है, और जो अपनी एलएलएम की वर्किंग है उस पर एक अपना टाइम ले रहा होता है।
तो उसके बाद उस सब प्रोसेस को सिस्टम ने यहाँ पर ऐड कर दिया, और खाली सब प्रोसेस ऐड नहीं किया, सिस्टम ने उसके अगेंस्ट कंट्रोल भी प्रपोज किया है, उसका ऑब्जेक्टिव भी, और डिटेल टेस्टिंग स्टेप्स भी रिकमेंड कर दिए हैं। आप हमाद, इसमें से बिलाल सॉरी साहब सॉरी टू मॉडिफाई इंटरप्ट। करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो सिंपली इल जस्ट प्रोसीड विद सबमिशन एज वेल। Hamad, एक और if you फीचर जो if you please जी allow me, Hamad, if you please allow me, there was a question from I think from Rashid Saab regarding the risk. I think this is the time actually to answer your question. यहाँ पे हमने ना ये reference risk जो enterprise से जो risks आते हैं उनके लिए हमने ये एक दिया है। ये अभी enabled नहीं है, बट इन द नेक्स्ट हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है अगले फेज में ये हमारा इनेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। एक रिस्क असेसमेंट आपने पहले देखी थी जो कि ऑडिट की टीम खुद से करती है, वो ऑडिट प्लान के अंदर आपने देखी थी। और यहाँ पे ये जो रेफरेंस रिस्क है, इट इज कमिंग फ्रॉम द एंटरप्राइज रिस्क जो कि आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर होंगे। तो हमाद, यू कैन कंटिन्यू नाउ। राइट देन, तो आफ्टर डूइंग द मॉडिफिकेशन द ऑडिटर कैन सिंपली सबमिट इट फॉर अप्रूवल टू द मैनेजर एंड देन सब्सिक्वेंटली टू द चीफ ऑडिट ऑफिसर। एक चीज़ और इधर हाईलाइट करता चलूँ, जितने भी डिलीवरेबल्स ये सिस्टम जनरेट करता है, they all go through the approval process, be it the audit program, be it the draft audit report or the final audit report. तो हमने अभी प्रोग्राम डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है, और एज पर द ऑडिट वर्क फ्लो अब हम एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये एक एरिया है सेल्स फॉर सीआरएम एप्लीकेशन का, इसकी मैं आपको एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूँ। राइट देन, अगर आप ये इंटरफेस नोट करेंगे तो आपको कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही होगी विद द ऑडिट प्रोग्राम, स्पेशली ये जो हमारे पास सब प्रोसेस है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, और टेस्टिंग स्टेप्स हैं, ये हमारे अप्रूव हो गए थे ऑडिट प्रोग्राम डेवलपमेंट में। अब उसके अगेंस्ट हमने इसकी एग्जीक्यूशन करनी है, तो हमारे पास 3 कॉलम्स और आ जाते हैं जिसमें वर्किंग पेपर्स हैं। ये पर्टिकुलर इंटरफेस अलाउ करता है जिसके थ्रू हम एविडेंस और वर्किंग पेपर्स अटैच कर सकते हैं। प्लस हम अपने ऑडिटर जो है वो कमेंट स्पेसिफाई कर सकता है कि क्या टेस्टिंग अगेंस्ट द टेस्टिंग स्टेप जो है परफॉर्म की गई है, और प्लस स्टेटस सिग्निफाई कर देता है कि whether this control was passed or failed. I'm sure everybody is aware of all this because आप लोग भी पॉलिसीज नेटवर्क स्पेशली रिलेटेड नेटवर्क इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर उसका ऑडिट जो है वो हो रहा होता है। तो इस तरीके से ही हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रही थी, और यही बेसिकली एक फीचर है ऑडिट एक्स का कि जितना भी ये डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड और रिपोर्ट रिलेटेड वर्क है, ये ऑफलोड हो गया है सिस्टम की तरफ, और ऑडिटर का जो एक्चुअल टाइम है वो अब लगता है इन परफॉर्मिंग द एक्चुअल फील्ड वर्क, जो कि ये है कि एक्चुअल सिस्टम पे गए, वहाँ जाके टेस्टिंग परफॉर्म की, और फिर अपनी जजमेंट के हिसाब से उसका स्टेटस अपडेट कर दिया कि ये कंट्रोल पास है या फेल है। So after performing the execution, the next step is to generate the draft audit report. So एक रिपोर्ट मैं आपको जनरेट करके इधर दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये स्टोर की हुई है सारी वैल्यूज़। तो आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द ड्राफ्ट बटन। ये हमारे पास एक पहले ऑडिट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रिपोर्ट आ जाती है, जो कि कैप्चर करती है प्रोग्राम की डिटेल्स और ऑडिटर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमने इनपुट की है सिस्टम को। तो इसको रिव्यू करने के बाद वी जस्ट सिंपली क्लिक दी ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट। राइट, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स जो है वो सिस्टम को गैदर करनी होती है इसमें,
और मेक श्योर कर रहा होता है कि जो रिपोर्ट जनरेट की गई है वो इन लाइन हो जो कि एग्जीक्यूशन ऑडिटर्स ने परफॉर्म की है. सो सिस्टम टेक्स अ वाइल टू ड्राफ्ट दिस ऑडिट रिपोर्ट. बट आई एम श्योर कि ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं है जितना कि अगर ऑडिटर खुद मैनुअली वर्ड में जाके इस रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने लगे. Right then. So the report has been generated. On the left, you can see all the failed controls या observations. आपके पास इधर नेविगेशन में शो हो रही होती हैं. इन पे आप जाके मैनुअली इनको मॉडिफाई कर सकते हैं. और जब हम इटसेल्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट की बात कर रहे होते हैं तो आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी सीन दिस सॉर्ट ऑफ अ टेम्पलेट which starts with the observation, implication, recommendation and risk level for each of the observation. और इसके अलावा अब इधर भी जो मॉडिफिकेशन परफॉर्म करनी है ऑडिटर ने, उसके लिए भी हमने एक बड़ा नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट जो है बेसिकली प्रोवाइड किया हुआ है. एंड थ्रू दैट वी कैन इजीली परफॉर्म ऑल सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन. तो एक डेमो में आपको उसका भी दे देता हूँ. अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन है ये काफ़ी लेंदी है, इसको ज़रा कंसाइज बना दिया जाए. और इसमें लेट मी ट्राई दिस एज वेल. मैं चाहता हूँ कि इसमें हम ये ऐड कर दें 2 sentences ओनली. तो आइए देखते हैं अब सिस्टम कैसे इसको रिस्पॉन्ड करता. अच्छा, यहाँ पे एक राइट देन. तो एग्जैक्टली जो मैंने इंस्ट्रक्शन पास ऑन की थी सिस्टम को कि जी आपने कंसाइज कर देना है और एक जो ऑडिट की टोन होती है उसको फॉलो कर रहे हैं. और प्लस लास्टली एक ऐड ऑन मैंने किया था कि जी कीप इट टू 2 sentences. तो एग्जैक्टली सिस्टम ने उसको वैसे ही परफॉर्म किया. और यही डिफरेंस है ऑडिट एक्स में और दूसरे चैटबॉट्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जी हमारे पास वो को पायलट भी है और दूसरे चैटबॉट्स भी हैं, तो वाई शुड वी यूज़ ऑडिट एक्स. देखिए, जब आप वो चैटबॉट्स यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आप चेंज ऑब्जर्वेशन करने जा रहे होते हैं, तो वो साथ इम्प्लीकेशन या रिकमेंडेशन या अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देता. तो इधर जो रिस्पांस सिस्टम का आता है ऑडिट एक्स का, वो बड़ा स्पेसिफिक है. और जो चीज़ हम परफॉर्म करने चाह रहे होते हैं वही एग्जैक्टली परफॉर्म हो रही होती है और दूसरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता. सो आफ्टर परफॉर्मिंग और फाइनलाइजिंग द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, obviously the auditor sends it for approval to the manager and chief audit officer. तो अब मैं आपको एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट दिखा देता हूँ जो कि ऑलरेडी जनरेटेड है. अच्छा, इसमें हमाद, इफ़ यू अलाउ मी, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट. जो भी प्रॉम्प्ट एलएलएम की तरफ जाता है, इट विल पिक अप द रेलेवेंट एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रैग, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है. देखिए, जो एलएलएम्स है ना, उनमें एक जो बुनियादी शॉर्टकमिंग होती है जब वो आपको प्रॉम्प्ट्स के ऊपर रिस्पॉन्स दे रहा होता है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मिसिंग होता है उसके अंदर. दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड इन ऑडिटेक्स थ्रू द रैग इम्प्लीमेंटेशन. और रैग आपकी स्पेसिफिक रेपोजिटरी है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के ऊपर मुश्तमिल है. सो ये वो नॉलेज बेस है जो एक ह्यूमन ऑडिटर विद द पैसेज ऑफ टाइम while working in an organization gains. In the similar way, Auditex also gains that information. सबसे पहली, आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि आप के पास एक नया ऑडिटर ज्वाइन करते हैं, तो आप उसको ओरिएंटेशन देते हैं. आप उसको जो ऑर्गेनाइजेशन की लैंडस्केप होती है, जो यूनिवर्स होती है, उसके ऊपर अवेयर करवाया जाता है. उसको पुरानी ऑडिट रिपोर्ट्स दी जाती हैं, उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो, and it takes some time, maybe few months, to get that auditor up to the speed. अब इस केस में ये वो ऑडिटर है आपके पास
which is not going to leave you, which is going to stay with you, which is going to be more knowledgeable with the passage of time, and it is good at retention because it is an AI based, RAG uh, equipped AI assistant. तो ये फर्क है। आपको बहुत सारे रिस्क्स जो ह्यूमन ऑडिटर के जाने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, उसको ये कवर करने की भी कोशिश करेगा। थैंक यू हमाद, प्लीज कंटिन्यू। राइट, थैंक यू। तो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। राइट देन, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाया है हमने। और ये हमारे पास एक पीडीएफ में जनरेट हो गई है रिपोर्ट, विच स्टार्ट्स विद द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑडिट एरिया, फिर सब एरिया उसके अंदर कौन सा था, फिर किस कंट्रोल के अगेंस्ट ये ऑब्जर्वेशन फाइंड की गई है। तो ऑब्जर्वेशन आ जाती है, इम्प्लीकेशन आ जाती है, रिकमेंडेशन है, रिस्क लेवल। तो इसी तरीके से जितने सारे ऑब्जर्वेशन है उन सब की डिटेल्स इस ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में आ जाती है। अब होता क्या है कि ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ऑडिटर उसको शेयर करता है ऑडिट डिपार्टमेंट के साथ या जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, और फिर उनका फीडबैक लिया जाता है कि वेदर दे एग्री विद दैट ऑब्जर्वेशन और नॉट। तो ये भी एम्बेड है सिस्टम के अंदर। तो क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऑडिट एरिया था, और उसका हम बेसिकली जो ऑडिटी फीडबैक है वो सिस्टम में कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम बेसिकली स्पेसिफाई, ऑडिटर जो है वो कमेंट स्पेसिफाई कर देता है फ्रॉम द ऑडिट डिपार्टमेंट, फिर स्पेसिफाई करता है कि वेदर द ऑडिटर एग्रीज विद दैट कमेंट और नॉट। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऑडिटर्स की फाइंडिंग्स आती हैं, और फिर समटाइम्स एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आता है ऑडिट डिपार्टमेंट की तरफ से तो वो ऑब्जर्वेशन ड्रॉप भी कर दी जाती है। तो यही सेम फीचर इस एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, कि अगर ऑडिट डिपार्टमेंट सेटिस्फाई कर दिए तो देर इज़ एन ऑप्शन टू ड्रॉप दैट ऑब्जर्वेशन एज वेल। तो इसको कंपाइल करने के बाद अगेन इट इज़ सेंड अक्रॉस फॉर अप्रूवल, और अप्रूवल के बाद हमारे पास फाइनल रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती है। फाइनल रिपोर्ट्स में हमारे पास दो तरीके की रिपोर्ट्स हैं। एक तो वो रिपोर्ट है जो कि स्टेक होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ शेयर की जाती है, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट कर कहते हैं। और इस रिपोर्ट ये काफ़ी स्पेसिफिक रिपोर्ट होती है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और जो कमेंट्स और जो फाइंडिंग्स हैं खाली वही मेंशन कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भी है जो कि सिस्टम जनरेट करता है। अब इसके अंदर सारी ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड डिटेल्स भी इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन थी, वेदर दे वर ड्रॉप्ड और नॉट। तो ये सिस्टम जो है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जनरेट कर देता है। द अदर डे वी वर डूइंग अ डेमो, तो एक बड़ा अच्छा कमेंट भी आया रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट कि ये रिपोर्ट बेसिकली, लेट मी जस्ट गिव शो दैट रिपोर्ट टू यू। ये रिपोर्ट बेसिकली ट्रेनिंग के तौर पे भी न्यू कमर्स के लिए यूज़ हो जाती है, जैसे कि अभी एहसन साहब ने पहले भी जिक्र किया था कि इससे रिलेटेड के सिस्टम तो ट्रेन हो ही रहा है। तो ये रिपोर्ट जो है हम बेसिकली जो हमारे न्यू हायर्स हैं उनको एजुकेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और एक नॉलेज प्रिजर्वेंस के लिए भी के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो सिमिलरली हमारे पास फाइनल रिपोर्ट है, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। और इसका जो फॉर्मेट है इट इज़ प्रीटी सिमिलर टू द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट, एक्सेप्ट दैट नाउ we have the auditee feedback, implementation date, and the final auditor comment embedded in this report. So ये था पूरा ऑडिट वर्क फ्लो, जो कि आई थिंक इन अबाउट 1 आवर कंप्लीट किया है। और यही सेम प्रोसीजर जो है अगर मैनुअली ऑडिटर या चीफ ऑडिट ऑफिसर परफॉर्म कर रहे हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम। तो इसमें मैं वो टाइम इंक्लूड नहीं कर रहा जो कि उन्होंने ऑडिट एग्जीक्यूशन में स्पेंड करना है या उन्होंने ब्रेन करनी है। लेकिन बहरहाल
with Auditex their lives becomes much more easier. तो उनको फिर आप अगर ये Auditex एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली इनवाइट देम टू इफ्तार पार्टीज एज वेल. लास्टली एक छोटा सा फीचर और भी है, वो है चैट असिस्टेंट का. तो ये जो चैट असिस्टेंट है ये भी हमारा कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक है, और ये आपको ऑडिट रिलेटेड आपकी जो क्यूरीज हैं उसको भी आंसर करता है. जैसे कि कुछ इधर फ्रीक्वेंटली यूज प्रॉम्प्ट हमारे पास मौजूद हैं. एक मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ. अगर ऑडिटर एक न्यू कमर है, वो जानना चाह रहा है अबाउट कॉमन ऑडिट चैलेंजेस, तो सिंपली वो इधर प्रॉम्प्ट करेगा, सिस्टम उसकी डिटेल्स जो है वो शो करके दे देगा. तो जितना बाय द वे सिस्टम जो है वो सिर्फ ऑडिट रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हीं को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है. और प्लस जो मैंने पहले बात की कि कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक है, तो ये कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ. कि अगर ये जानना चाह रहे हैं हम कि नेक्सोरा में कौन सी की एप्लीकेशंस चल रही हैं, तो आई जस्ट सिंपली टाइप दिस प्रॉम्प्ट. और अब ये अब जो हमारा रैक जहाँ भी आईटी यूनिवर्स स्टोर हुई भी है, वहाँ से इंफॉर्मेशन फैच करके और रिस्पांस जो है वो जनरेट कर रहा होगा. राइट देन. तो अगेन इसका जो रिस्पांस है वो स्ट्रक्चर्ड होता है और प्रिसाइज होता है, और विद इन दी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्ट्स होता है. तो आई एम श्योर ये आपने एप्लीकेशंस सारी देखी होंगी जब मैं आपको ऑडिट एरिया सिखा रहा था, जिसमें ओरेकल बिलिंग है, सैप S/4 हैना है. तो बिल्कुल प्रिसाइज रिस्पांस जो है ये ऑडिट बॉट जो जनरेट करके दे रहा होता है. सो दैट कंक्लूड्स अवर डेमो. Let me just go back to the presentation, and we do have our last slide left. तो जनाब, अगर आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये अपने कुलीग्स जो कि ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड इफ़ दे वुड लाइक, वी वुड लव टू host them for a demo and presentation. So thank you very much, everybody. And now we open the floor for Q&A. So feel free to ask if you have any questions. Thank you all.